Hello everyone, and I welcome you all to the Prep Board. So today, this is the second part of innovation and entrepreneurship. We will be posting 20 important MCQs in this particular video. And this video will be very important for all the students who are planning to give CMAT this particular year. So I request every participant of CMAT to watch this video till the end so that they can take benefit of it. So before starting, I would like to make an announcement that the Prep Board team has prepared a question bank, and this question bank covers 150 very important MCQs of innovation and entrepreneurship. So if you wish to take this particular MCQs question bank, then you can comment interested in the comment section and subscribe to our channel so that we can provide you the particular question bank. Moreover, online test series of CMAT 2022 is going on, and in this particular test series, we are offering 30 GK sectional tests, 5 innovation and entrepreneurship sectional tests, and other things are given here. 5 GK innovation live sessions, daily current affair update, 1000 question GK bank. So everything which is the part of the CMAT examination is given here, so that you can prepare very well for the CMAT examination. So if you wish to join this particular workshop for CMAT, then you can contact us on the below numbers. This particular workshop is going on. So let's move ahead and discuss our questions for today. Let's move ahead. So आइए start करते हैं. We will start with our first question. The resistance of employees in an organization against flexibility, growth and diversification can be overcome by developing. यानी कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन नहीं आ रहा है और एम्प्लॉयज आर रेजिस्टिंग, सो व्हाट थिंग कैन ओवरकम दैट? So we have four options. We have entrepreneurship, managerial domain, intrapreneurship और administrative domain. So the correct option for this is intrapreneurship. देखिए क्या administrative domain is a completely different thing, and entrepreneurship also is a different thing, because entrepreneurship जो होती है वो एक नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो होता है वो नए प्रोडक्ट को या ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होता है. सो इंट्राप्रेन्योरशिप इज द करेक्ट आंसर. इन इंटरप्रेन्योरशिप आप क्या करते हैं कि आप अपनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कोई नए प्रोडक्ट का इनोवेशन करते हैं. सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है. सो इंटरप्रेन्योरशिप इज द करेक्ट आंसर. You can note the correct answer and let's move ahead. So what shows the process of creating something new? अगर हम कोई something new कोई चीज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? Either it is innovation, business model, modeling और creative flexibility. So the correct option for this is innovation. यानी कि अगर कोई प्रोसेस को हम नया स्टार्ट करते हैं तो that is known as innovation. So you can note the correct answer for this. Let's move ahead. Which of the following is an advantage of small firm in innovation process? यानी कि अगर कोई small firm एक innovation process में है तो इसकी क्या advantages हैं? So ability of entrepreneur to carry out multiple tasks, ability to raise finance, ability to carry research or ability to act on new ideas. So the correct option for this is option number D, एबिलिटी टू एक्ट ऑन न्यू आइडियाज. क्योंकि देखिए अगर कोई फर्म नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप के पास में मल्टीपल टास्क करने का भी उतना टाइम नहीं होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी उतना टाइम नहीं होता है, और फाइनेंस रेट करने में भी उसको प्रॉब्लम होती है. तो न्यू आइडिया डेवलपमेंट जो है वो एक एंटरप्रेन्योर जो है उसमें बड़े आराम से कर सकता है. सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर, दैट इज डी. लेट्स मूव अहेड. द गोल शुड बी फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस प्लान की जो हमारे गोल्स होते हैं बिजनेस प्लान की सक्सेस के लिए वो कैसे होने चाहिए? Either it should be generalized or it should be specific or it should be limitless or it should be imaginary. So the correct option for this is specific. यानी कि हमारा जो बिजनेस प्लान है एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए हमारे पास में कि एट द एंड ऑफ 1 year हमें क्या करना है, एट द एंड ऑफ 5 year हम where we want to reach our company. So specific is the correct answer for this. Let's move ahead. What gives suggestion for new product and also help to market new products? सो यानी कि अगर हमें नया प्रोडक्ट और न्यू मार्केट पे लॉन्च करना है अपने प्रोडक्ट को, तो सजेशंस हमें कौन देता है? फॉर एग्जांपल ऑप्शन है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंज्यूमर्स, फेडरल गवर्नमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमारे पार्टनर्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं हमारे प्रोडक्ट को नए मार्केट्स में पहुंचाने के लिए, जो कि कंज्यूमर से रिलेटेड कंज्यूमर का काम ही नहीं होता है, गवर्नमेंट का काम भी नहीं होता है. सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होता है वो हमारी हेल्प करता है इन ऑर्डर टू मार्केट अवर न्यू प्रोडक्ट्स. सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर फॉर दिस. एक्सटर्नल लिंक्स में प्रोवाइड इंसेंटिव टू. अगर एक्सटर्नल लिंक्स हैं हमारे, हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और हमारे एक्सटर्नल लिंक है तो वो किस चीज में हमारी हेल्प कर सकते हैं हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए?
So either attend business exhibitions, introduce new working practices, introduce improvements to product और raise finance. तो जो external links होते हैं इनका जो मेन हमारे पास में हेल्प होती है वो कहाँ पे होती है? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज इंट्रोड्यूस इम्प्रूवमेंट्स टू प्रोडक्ट, क्योंकि वो शायद नई वर्किंग प्रैक्टिसेस हमें एक्सटर्नल लिंक ना बता पाए और बिजनेस एग्जीबिशंस भी हमारे लिए ना लगा पाए, बट डेफिनेटली वो हमारे प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट हमें सजेस्ट करते हैं. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. Let's move ahead. What is used by entrepreneur to acquire experience in an international market before making a major commitment? यानी कि एक्सटर्नल मार्केट में कमिटमेंट करने से पहले एक एंटरप्रेन्योर को किससे हमारे पास में यू कैन से परमिशन और कमिटमेंट लेना जरूरी है. सो वी हैव 4 ऑप्शन: माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जॉइंट वेंचर, मर्जर और मेजॉरिटी इंटरेस्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट. यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी रहता है कोई भी मेजर कमिटमेंट करने से पहले. सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर फॉर दिस. GATT इज एस्टैब्लिश इन 1947. जो GATT है यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, तो ये 1947 में एस्टैब्लिश हुआ था. सो ये किस लीडरशिप के अंदर में एस्टैब्लिश हुआ था? सो वी हैव ऑप्शंस ऑफ जर्मन लीडरशिप, फ्रेंच लीडरशिप, यूके और यूएस लीडरशिप. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज यूएस लीडरशिप. यानी कि जो GATT है वो 1947 में यूएस लीडरशिप के अंदर में इंस्टॉल हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था. तो यू कैन नोट द आंसर. द वर्ड एंटरप्रेन्योर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हूम, यानी कि जो वर्ड एंटरप्रेन्योर है ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? Either MS Dhoni, Mukesh Ambani, Jean Baptiste or Steve Jobs. So the correct option for this is Jean Baptiste. Jean Baptiste has introduced the word entrepreneurship. Let's move ahead. An entrepreneur who has no prior business ownership experience, यानी कि अगर कोई entrepreneur है अपने काम को नया नया स्टार्ट कर रहा है, पहली बार काम कर रहा है, तो उस entrepreneur को हम क्या कहेंगे? नोवाइस entrepreneur, imitative entrepreneur, portfolio और none of the above. So the correct option for this is नोवाइस एंटरप्रेन्योर. नोवाइस मतलब ही होता है नया, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर पहली बार अपना काम स्टार्ट कर रहा है और उसके पास कोई पुराना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नोवाइस एंटरप्रेन्योर. यू कैन नोट द आंसर. फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? सो हु मेक्स अ कंपनी, हु मेक्स ऑर्गेनाइजेशन, हु स्टार्ट एन इंडस्ट्री विद इनोवेशन आइडियाज और नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सी, हु स्टार्ट एन इंडस्ट्री विद इनोवेटिव आइडियाज. क्योंकि अगर कोई कंपनी बनाता है तो वो भी एंटरप्रेन्योर नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है वो भी नहीं होता है. अगर आप नए आइडिया को स्टार्ट करते हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर जो है वो यू नो बी नोन एज एंटरप्रेन्योर. सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर. एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो किस चीज से रिलेटेड होते हैं? सो आइदर दे आर रिलेटेड टू नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, और बोथ मीन्स बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. यानी कि जो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं. सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर. सो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक अवर वीडियो and please share this video to your friends so that other persons who are preparing for CMAT can take benefit of this, and they can also take benefit of the multiple choice question bank which we have prepared. And do subscribe to our channel in order to get more informative videos. Let's move ahead and discuss our next question. Buying and selling of manufacturing good related to which entrepreneur? यानी कि buying and selling of goods जो होते हैं ये कौन से entrepreneur से related होते हैं? Either novice entrepreneur, imitative, ट्रेडिंग और पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर. यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जो होता है वो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड होता है. लेट्स गो अहेड. एन इंडिविजुअल हु मेक्स चेंजेस इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल मेथड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज करता है तो हम उसे क्या कहेंगे? इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर, नोवाइस एंटरप्रेन्योर और ड्रोन एंटरप्रेन्योर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ड्रोन एंटरप्रेन्योर. यानी कि जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज करता है उसे हम ड्रोन एंटरप्रेन्योर कहते हैं. लेट्स मूव अहेड. वन हु स्टार्ट विद एन आइडिया नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट फॉर सोशल वेलफेयर. यदि आप कोई पर्टिकुलर आइडिया स्टार्ट करते हैं जिसमें आपका जो मोटिव होता है वो पैसा कमाना नहीं होता है बल्कि सोशल हेल्प होता है, सो ये कौन सा हमारे पास में एंटरप्रेन्योर होता है? सो ऑप्शंस है सोशल एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, ड्रोन और नोवाइस एंटरप्रेन्योर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सोशल एंटरप्रेन्योर. यानी कि जो सोशल एंटरप्रेन्योर होता है उसका मेन प्रॉफिट, मेन जो वर्क होता है वो सोशल वेलफेयर होता है. यू कैन नोट द करेक्ट आंसर. एन एंटरप्रेन्योर हु इज इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस. यानी कि देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोवाइस एंटरप्रेन्योर नहीं है बिकॉज बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. अभी ये बिजनेस प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग में है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. सो ऑप्शन है हमारे पास ड्रोन एंटरप्रेन्योर, नोवाइस एंटरप्रेन्योर, नेसेंट और सोशल एंटरप्रेन्योर.
So the correct option for this is nascent entrepreneur, मतलब कि जो business है अभी start नहीं हुआ है, it is in the process of starting. So you can note the correct answer. I hope you are liking our video because these questions are important for you to attend. Which are the functions of an entrepreneur? यानी कि entrepreneur के function क्या क्या होते हैं? Risk bearing, innovation, organizing and managing, or all of the above. So the correct option for this is all of the above. यानी कि जो functions of entrepreneur है वो सारे होते हैं. Risk bearing भी करना पड़ता है entrepreneur को, innovation भी करना पड़ता है, organization और managing भी करना पड़ता है. So you can note the correct answer. An entrepreneur enter into business to improve quality product by their invention and discoveries comes under. तो यानी कि जो ऐसा एंटरप्रेन्योर होता है जो इन्वेंशन और डिस्कवरीज करता है, सो आइदर इट इज अ टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशनल, नोवाइस और ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज टेक्निकल एंटरप्रेन्योर. यानी कि जो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होता है वो मेनली इन्वेंशंस और डिस्कवरीज से रिलेटेड प्रोडक्ट इंप्रूव करता है. सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर. द टर्म एंटरप्रेन्योर हैज बीन यूज्ड फ्रॉम, यानी कि जो टर्म एंटरप्रेन्योर है वो कहाँ से यूज हुआ है? आइदर इट इज एन इंग्लिश वर्ब, ग्रीक वर्ब, इटैलिक वर्ब और फ्रेंच वर्ब. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज फ्रेंच वर्ब. सो दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन कि वर्ड एंटरप्रेन्योर है जो फ्रेंच वर्ब से लिया गया है. यू कैन नोट दिस. एंटरप्रेन्योर मीन्स व्हाट? एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? आइदर टू स्ट्रगल, टू अंडरटेक, टू इन्वेंट और टू मोटिवेट. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज टू अंडरटेक. यानी कि जो एक नए बिजनेस को, नए आइडिया को अपने इनोवेशन से अंडरटेक करता है. सो टू अंडरटेक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो यू कैन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. एंड इफ यू वांट टू take that particular question bank of 150 questions, you can contact on below numbers. Or if you wish to attend our CMAT online special workshop, then also you can comment on these below numbers. We wish all the best to all our students. Thank you very much.